آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سامعین اکرام، یہ ایک رافضیوں کا مفتی ہے، عالم ہے، کسی نے اس کا نمبر دیا تھا، اس سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد اس سے جب میری بات شروع ہوئی تو دیکھیے حقیقت کو بالکل اجاگر کر دیا میں نے کہ رافضیوں کے عقیدے کیا ہے، رافضی کس پر چلتے ہیں، اور رافضی کا جو یہ مولائی فرقہ ہے یہ کب وجود میں آیا ہے، پوری حقیقت کو میں نے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ اس کو سنیں۔ جیسے اس کا فون میں نے رکھا تو اس نے ایک مردود جو شیطان کا بچہ امروہہ کا حرام خور ہے، جس کا نام قاری احمد حسن ہے، اس نے ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیا۔ فون کرتے ہی نہ کچھ دعا سلام کچھ نہیں، سیدھا گالیاں ماں بہن کی بکنا شروع کر دیا۔ وہ ریکارڈنگ میں لگا نہیں سکتا، اتنے گندی گندی گالیاں وہ بک رہا تھا، کیونکہ میں نے جب اس سے بات کری، یہ ریکارڈنگ جب اس نے قاری احمد کو بھیجی تو وہ بوکھلا گیا، پاگل ہو گیا وہ، اور میں اس سے بار بار کہتا رہا کہ تیرے اندر صلاحیت ہے تو علمی بات کر، علمی بات کر، لیکن وہ گالیاں بکنے لگا۔ تو وہ ریکارڈنگ میں نہیں لگا سکتا، اس میں صرف گالیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو پرسنل میں چاہیے تو میں دے دوں گا، لیکن اس ریکارڈنگ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت دن کے بعد میں اپنے چینل پہ ریکارڈنگ ڈال رہا ہوں، کیونکہ میں کام کر رہا تھا اور بہت ضروری کام کر رہا تھا، اس میں پھنسا ہوا تھا۔ میرے عزیز جو ہے، میرے دوست یار ہیں، وہ جانتے ہیں میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ شیعہ رافضیوں سے آپ کا ایمان بچا رہے، اور آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کے احباب محفوظ رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت میں علی قادری بات کر رہا ہوں۔ ہلو، علی قادری بات کر رہا ہوں سید صاحب۔ ہاں جی جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ میں دلی سے بات کر رہا ہوں، دلی۔ جی جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ علی قادری جی، علی قادری۔ یہ جی آپ کا نمبر جو ہے ایک یوٹیوب چینل پہ کسی نے ڈالا ہوا آپ کے ریکارڈنگ کے تعلق سے، جی جی، تو میں اس کو کال لگا کے بہت اس کا لیا میں نے کلاس اچھے سے۔ ہاں اچھا، آپ علی قادری بول رہے ہیں؟ جی جی ہاں، کیا دیکھو علی قادری صاحب جو ہے، میری تو ایسی عادت نہیں، انہوں نے فون لگایا، میں ہلو خیر خیریت سلام، اور کیا بھی بات نہیں، جو ایک دم سے وہ مفتی صاحب کی چھوٹے فرزند کی وہ ایک دم ہی میرے ہاتھ میں سے لے لیے۔ میں ان کو کیا بھی نہیں بولا جو ہے، اور میری ایسی عادت نہیں، کہیں سے بھی فون آتا ہے کوئی گالی بھی دیا تو میں دعا سے بات کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کیا اور کیا مغرضات، یہ حضرت یہ سید شہباز صاحب صابری جو ہیں، سید شہباز صاحب صابری آپ کے صاحبزادے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں۔ اچھا اچھا، ارے ماشاء اللہ، میں بہت سنتا ہوں ان کو، ان کی تو میں بیانات بہت سنتا ہوں۔ ابھی میں ان کو بھی فون لگایا، وہ اٹھائے نہیں۔ حضرت ایسا نا ہمارے معاشرے میں بہت سنا جاتا ہے ان کو، بہت اچھا بولتے ہیں وہ۔ یہاں وہ عمرہ گئے ہوئے ہیں، عمرہ گئے ہیں وہ۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ یہیں ہیں ابھی؟ جی ہاں، میں تو یہیں ہوں۔ اچھا اچھا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہے وہ ہمارا۔ ہاں جی۔ اچھا حضرت، جیسے ہمارے معاشرے میں ابھی یہ حضرت علی علیہ السلام کا جو شہادت کا دن منایا جا رہا ہے کہ 21 رمضان کو تیاری چل رہی ہے۔ ہلو، جی جی، بولتے رہیے آپ، میں سن رہا ہوں۔ تو اس کے تعلق سے ہمیں کیا بہتر کرنا چاہیے، ذرا آپ تھوڑا سا وضاحت کریں، لوگ سن رہے ہیں یہاں پر۔ ہاں، میں تو جو ہے یہاں گھر میں ہر مہینے کسی کا یوم ولادت، کسی کا یوم شہادت چلتا رہتا ہے۔ جی جی جی، جو ہے تو اس کے شرائطی حقوق بتا دیجیے تھوڑا سا۔ حالانکہ میں سنی ہوں، جی جی جی، لیکن ہمارے گھر میں ہر مہینے کسی کا یوم ولادت ہے اور کسی کا یوم شہادت ہی، یہ برابر چلتا رہتا ہے۔ اچھا، تو اس کا شرعی حکم تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں نا۔ نہیں علی قادری صاحب، یہ دیکھیے، مولائے سرکار، مولائے کائنات، مولائے متقیان جو ہے امیر المومنین سیدنا حضور مولا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام کا، یا اپنے کسی بھی بزرگوں کا، یا ائمہ اہل بیت اطہار کا، یا کسی بھی بزرگ کا یوم ولادت یا یوم شہادت، اس کے کسی شرعی جواز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک یاد ہے۔ جی سرکار، میں کہہ رہا ہوں طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ وہ عنایت کری۔ بہت سے لوگ الگ الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں،
कोई जो है घर में करता है, कोई बाहर करता है, कोई मस्जिद में करता है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी मेजॉरिटी एक साथ मिल करके इसको करे तो ये दुरुस्त होगा ना करना। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, जो है अब मैं अपने घर में भी मनाता हूँ। जी उसके बेहतर बाद बेहतर। मेरे प्रोग्राम बाहर भी होते हैं, मजमे आम में भी होते हैं, मैदानों में भी होते हैं। अच्छा समझ माशाअल्लाह रहे हैं? माशाअल्लाह। मैदानों में भी होते हैं। अब मेरा जो है 15 रमजान को सरकार इमाम पाक इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश का मेरी तारीख मुकर्रर है, बाहर जा रहा हूँ मैं। माशाअल्लाह। तो उसके बाद हजरत इसमें एक मसला थोड़ा सा ये है कि जैसे हम लोग मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से 40 दिन तक कोई खुशी नहीं मनाते हैं। जी शादी ब्याह भी नहीं करते हैं जी हाँ और बहुत एहतराम करते हैं। मातम हुसैन बहुत अच्छे से एहतराम करते हैं, लंगर का, सबील का, जी। और बहुत सारा एहतमाम करते हैं हम लोग। जी तो जैसे अब ये रमज़ान में हमारा ईद का भी जो है यहाँ पे मिल के सब खुशियाँ मनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। ईद में भी जी जो है यहाँ पे सिवैयों का लंगर लगाया जाता है और जी खुशी मनाते हैं, हर चीज़ अपना ठीक ठाक से करते हैं। जी तो अब यहाँ पे एक मसला ये आया है कि जैसे निकाह जो है, हमारे एक भाई की बेटी का निकाह 27वें रमज़ान को तय पाया है। जी तो उसमें इन्होंने इफ्तारी का इंतज़ाम किया है लोगों के लिए जी और उसी में निकाह कर देंगे। तो हमने बोला कि हजरत से पूछ लेते हैं, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है हजरत? क्या कहते हैं, ये रमज़ानुल मुबारक में निकाह करना? नहीं, अब उन्होंने क्योंकि रमज़ान में अब 21 अब वो तो सरकार मौलाए पाक का तो 21 रमज़ान को वो उनका हो जाएगा। जी जी तो उसके बाद में 27 को कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई कबात नहीं, शरई कोई कबात नहीं है। जी जी अब जी जैसे हम लोग मुहर्रम में 40 दिन नहीं करते जी, तो जी। वो एहतराम है बाबा, उनके गम से बड़ा हमारे लिए क्या गम है बताइए। जी जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले रमज़ान की और ईद की एडवांस में क्या बता, वो फ़ोन उठाए ना उठाए, मुबारकबाद पेश कर दूँ? मैं मुबारकबाद भी पेश कर पाया आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो रमज़ान के लिए। अल्लाह ताला खूब रहमतें, नेमतें, बरकतें अच्छा, आपको अता फरमाए। जी जी और जी। सबसे बड़ी ये चीज़, सरकार मौलाए कायनात सैयद कायनात, उनकी औलाद की मोहब्बत का सच्चा वफादारी और जज्बा अल्लाह आप लोगों को अता फरमाए। अच्छा, दो सवाल और हैं हजरत के, एक बैठे हैं ये भी, इनका भी एक सवाल ये है कि हजरत जैसे हजरत अली करमुल्लाहुल करीम, हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो ये लोग मर्तबा घटाते हैं, जैसे मर्तबा घटाते हैं इशारतुन्नस या दलालतुन्नस या इज्तिहादुन्नस, हाँ या फिर किसी दलील से किसी भी तरीके से मर्तबा घटा के किसी और को फौकीहत देते हैं ऊपर में, तो इनके ताल्लुक से थोड़ी सी वजाहत करें हजरत। जैसे मिसाल के तौर पे हजरत अली का जो मकाम और मर्तबा है, अगर उनसे बड़ा किसी का मर्तबा बना दिया इशारत उन्नस में, इशारों में, या दलील में, दलील देने की कोशिश करें, या दलील में, या अमल में, या हम अमल में, तो इसके ताल्लुक से थोड़ी सी वजाहत कर दें। और दूसरा सवाल ये है कि आज की तारीख में कुरान शरीफ तर्जुमे का किसका पढ़ा जाए? ये दो सवाल का जवाब इनायत कर दें। जी, आज की तारीख में कुरान शरीफ तर्जुमा किसका पढ़ा जाए? हाँ 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 हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ तक सरकार मौलाए कायनात और सैयद पाक के फ़ज़ाइल हैं और इमाम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के, जी ये मैं अगर कहाँ से शुरू करूँगा, अभी आपका वहाँ गुमान भी नहीं होगा लोगों का। और जी, वो जी। मुदल्लल है, ये जी, लोगों जी। ने क्या साजिशें की हैं इनके फ़ज़ाइल में, लेकिन अगर और मगर लगा के ये 1400 साल से चल रहा है। जी जी अगर मगर और लेकिन लगा के और दूसरों के फ़ज़ाइल इतने बयान किए गए हैं ताकि अब अगर जनावाला इनके फ़ज़ाइल बयान किए, सीधे राज़ी और शिया का फतवा लगाते हैं और सीधे बोल देते हैं अरे अबू बकर की शान में गुस्ताखी, सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी कर दी, फारूक आज़म की शान में, ऐसे करके प्रोपेगेंडे कर रहे हैं नालायक नस्ली लोग। जी जी जी। सब प्यारे आका मेरे पास तमाम दलाइल के अंबार लगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक के बाद सबसे अफजल मकाम दलाइल के साथ सैयद-ए पाक और मौलाए कायनात का है। जी बिल्कुल। और उस पर हुक्म क्या नाफिज होगा जो मर्तबा बढ़ाने की कोशिश करे? जी, उस पर हुक्म क्या लगेगा? जैसे कोई मर्तबा हजरत अली से बड़ा बताने की कोशिश करे, अमल में, दलील में, या इशारों में। उसके लिए फ़ोन पर आपको क्या बताऊं, वो सब झूठे और मक्कार हैं, और वो सब जो है वो सब जाली हदीसें हैं जो घड़ी गई हैं बनु उमैया के, बनु अब्बास के ज़माने में। जी, जी। सरकार मौलाए कायनात का तो
की फजीलत सबसे बड़ी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई है। मेरे पास तमाम किताबों के अंबार दलाइल मौजूद हैं, लेकिन अब पास में हो तो वो दो चार 10-5 मिनट में वो बात नहीं होती, घंटों लगते हैं जी आपको जी बताने जी में। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, आज की तारीख में कुरान शरीफ जो तर्जुमे का है, जैसे लोग पढ़ते हैं कंजुल ईमान यहाँ पे, क्योंकि और कोई कुरान अच्छा नहीं है, तर्जुमे में सबके गलत है। हमारे मस्जिद के उसमें भी इमाम साहब गलत हैं, है, 17 गलतियां हैं उसमें। तो हजरत थोड़ा सा ये हमारे मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो ये कहते हैं कि कंजुल ईमान ही पढ़ो, क्योंकि उसमें कम गलतियां हैं मिसाल के तौर पे, लेकिन बाकियों ने तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हुई हैं। हाँ खैर ठीक है, वो तो ये तो उन्होंने, चलो इमाम साहब को मैं सलाम करता हूँ, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। उन्होंने ये तो माना कि कम गलतियां हैं, मगर गलतियां तो हैं। तो हजरत फिर ऐसा अपने आलिमों में अकाबिरों में किसी ने अभी तक कुरान का तर्जुमा किया या नहीं किया, वो पूछ रहा था मैं। ये अल्लामा ताहिर कादरी साहब का है। अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब का जो तर्जुमा है वो दुरुस्त है? तो बहुत शानदार है, कहीं कहीं जरा से भी शक की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे इमाम हुसैन की शहादत हुई 10 मुहर्रम हराम को जी और हम 40 दिन तक मातम करते हैं, 40 दिन तक कोई खुशी नहीं मनाते। जी और हजरत अली करमुल्लाहु वजुल करीम की शहादत हुई 21वें रमज़ान को, जी तो हम 9 दिन के बाद खुशी कैसे मना लेते हैं हजरत? जी 9 दिन के बाद हम खुशी कैसे मना लेते हैं? ये अमल में हजरत अली अमल में मुनासिब नहीं है। नहीं एक आपको मालूम है, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए। अमल में हजरत अली का मर्तबा तो फिर आप लोगों ने घटा दिया ना, 9 दिन के बाद खुशी मना रहे हैं। नहीं, वो आपने पूछा तो मैंने ऐसा करके बता दिया, हम तो नहीं मनाते। अच्छा, ईद नहीं मनाते आप? नहीं, अब वो ईद तो ईद बस वो इतनी हम मनाते हैं। हाँ, आपने ऐसे ही कहा, देखो ईद में नए कपड़े पहनते हैं, ईद में नए कपड़े। ये सवाल है हजरत, ये सवाल है यहाँ के लोगों का। मेरे घर में मैं हाँ 9 दिन ईद के दिन भी नए कपड़े नहीं पहनते, बस सिर्फ ईद की नमाज पढ़ के आते हैं। तो ईद की नमाज ही तो खुशी है ना हजरत, वो नमाज खुशी के लिए तो पढ़ी जा रही है। हाँ, तो क्या वो एक परंपरा चल रही है ऐसे नहीं, तो फिर परंपरा देखिए, परंपरा तो ये भी है कि बुखारी की हदीस है और रिवायतों में भी मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि शहादत का जो मातम है वो सिर्फ 3 दिन तक है, 3 दिन तक सोम मनाए, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन नहीं मनाए। तो ये 40 दिन कैसे हो गया? अब ये भी तो रिवायत में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की, सुनिए, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की फतुल गैब में ये हवाला मौजूद है। उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है, और यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी ये कौल है कि 3 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पड़ोसी को उनका ख्याल रखना है, और 3 दिन के बाद कोई शोभ नहीं। अगर कोई ऐसे ठहाके लगा के रोता है तो हुजूर की हदीस है कि उसके मुंह में खाक डाल दी जाए, मिट्टी डाल दी जाए। तो ये 40 दिन मातम करके और इमाम अली करमुल्लाहु वजुल करीम का 9 दिन मातम करके, ये आप लोगों ने मर्तबा घटा दिया ना हजरत अली का। नहीं, अब मैंने नहीं, आप मुझे मत कहिए ऐसा। नहीं, ये तो यहाँ तो पकड़ हो रही है ना हजरत, हमारी पकड़ ही नहीं हो रही है। नहीं, वो मेरी पकड़ मत कीजिए आप, मैं तो बिल्कुल जो आप है वही मैं हूँ। एक चीज और बता दूं, तो लीजिए, एक चीज और बता दूं, हाँ एक चीज और मैं बता दूं। आपने कहा ताहिरुल कादरी का जो कुरान है वो मुकम्मल बिल्कुल ठीक है ना जी। तो जनाबे मन ताहिरुल कादरी ने कुरान कॉपी किया है आला हजरत के कंजुल ईमान से, एक एक हर पर एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, ना इधर है ना उधर है, दोनों बराबर है। जी। और अभी ये सिर्फ 10 साल 12 साल से ताहिरुल कादरी पलटा है, नहीं तो आला हजरत के मसलक से इसने अपना मसलक खड़ा किया है। आप इसके पिछले तो ये पलटा, मैं भी उनसे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता। आपने जो बताया, अब क्या करें, तो मैं ऐसा करके बता दिया, अब करें तो क्या करें, किसका पढ़ें? अब पता ये लगा कि आला हजरत का जो कंजुल ईमान में जिसमें आप 17 गलती बता रहे हैं जी, हालांकि वो गलती है नहीं जी। 17 गलती, क्योंकि आला हजरत ने तफसीर नहीं लिखी, तफसीर पे एतमाद किया, तफसीर मदारिक, तफसीर बैज़ावी, तफसीर जलालैन पे, क्योंकि अगर आप कुरान को तफसीर से पढ़ोगे आला हजरत के तो आपको बिल्कुल तर्जुमा दुरुस्त लगेगा, बिल्कुल एकदम दुरुस्त लगेगा। लेकिन जो ताहिरुल कादरी ने जो तर्जुमा किया वो हूबहू आला हजरत का कॉपी किया है। जी, अपना नाम डाल दिया है बस, और कोई वो फर्क नहीं है। तो अब ये बताइए, ये जो मौलाई फिरका आपने निकाला है, तो इस मौलाई फिरके की वजूद ये है कि ना इसमें अभी तक किसी आलिम की जरूरत हुई है कि वो कुरान का तर्जुमा कर दे, और इमाम हजरत अली करमुल्लाहु वजुल करीम का मर्तबा घटा दिया। 9 दिन में ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नए कपड़े बच्चों को पहना रहे हैं, सिवैया का लंगर कर रहे हैं, सिवैयाँ खिला रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं।
तो ये इमाम हसन से ऊपर आपने फौकियत हजरत अली को दे दी और बदनाम करते हैं बरेलवियों को, इसका जवाब इनायत करिए। नहीं, अब मैं तो देखिए, मेरा तो मौक़िफ़ जो कुछ आप कह रहे हैं ना, मैं वो एकदम से बताया नहीं। मेरा मौक़िफ़ और मेरा अक़ीदा और मेरा बिल्कुल अमल वही है अली कादरी साहब जो बिल्कुल आपका है। हजरत देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, खुदारा बुजुर्गों की किताबों को पढ़ें। आप अपने आप को सैयद कहते हैं, बुजुर्गों की किताबों को पढ़े, रिवायतों को पढ़े, रिवायतों को पढ़े। मुझे कोई मशवरा दीजिए तो नहीं, मैं मशवरा दे रहा हूँ, वही सुन लीजिए आप। हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से इमाम जो आप लोग लान तान करते हैं, इस पर आप हजरत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पढ़ें, गौसे आजम की किताब को पढ़ें, तो इमाम जाफ़र सादिक की तो बगदाद के ये क्या कहते हैं तारीख़ दमिश्क पढ़ें। ये सब किताबों को अगर आप पढ़ेंगे ना, और जो हदीसें आप जो बुखारी की और इसकी जो पेश करते हैं, उस हदीसों को अगर शरह के साथ पढ़ेंगे, और अगर आप ये कहते हैं कि हजरत मुआविया के ताल्लुक से आप एक हदीस पेश करते हैं कि अम्मार के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया है अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। जी जी। लेकिन आप ये भूल गए कि हुजूर ने अशरा मुबशरा के जो 10 सहाबी में एक सहाबी जो जंगे सिफीन में शहीद हुए थे, ये जंगे जमल में हाँ, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला। अब वो तो आपके जंगे जमल में जो सहाबी शहीद हुए थे, उसके ताल्लुक से हुजूर ने उनको अशरा मुबशरा में रखा और कहा कि जो इनको कत्ल करेगा वो काफिर होगा, वो गिरोह काफिर होगा, मुनाफिकों का होगा। तो जब जंगे जमल में जो लश्कर हजरत वाला के मुकाबले में आया, वो तो हजरत अली का था। तो हजरत अली के क्या कहते हैं माज़अल्लाह, हजरत अली के गिरोह ने उनको कत्ल किया, और हुजूर की हदीस यहाँ फिट हो रही है। अब दूसरी हदीस जो आप हजरत अम्मार वाली लाते हैं, वो हदीस वहाँ फिट हो रही है। तो पता ये लगा, आपने इसकी तारीख नहीं पढ़ी, पता ये लगा कि ये दोनों गिरोह जो था, ये दोनों गिरोह बागी गिरोह जो था, ये दोनों बागी गिरोह वही गिरोह था जिसने हजरत इमाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया था, शहीद किया था। तो ये दोनों गिरोह वो था। अगर आप हजरत अम्मार के ताल्लुक से हजरत अमीर माविया के ऊपर लान तान करेंगे, तो हजरत अली के ऊपर भी लान तान हो रही है ना। हजरत अली ने जंग जमल में उन साथी को शहीद किया, फिर माज़अल्लाह नहीं। अब वो इस पे तहकीक कीजिए हजरत मेरा मशवरा है, इसमें आप तहकीक कीजिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कर रहा हूँ। अब आप अपनी कह रहे हैं अली कादरी साहब, मेरी तो आप कोई भी बात अब आप सुना दीजिए। चलिए अब आप सुना दीजिए। हजरत महबूब इलाही के बारे में आपने बताया। हजरत महबूब इलाही ने, देखिए आप तो वहाँ दिल्ली में बता रहे हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ, शेरुल औलिया, उसमें उन्होंने लिखा है, शेरुल औलिया उनकी किताब नहीं है, शेरुल औलिया उनकी किताब नहीं है, उनके खलीफा की है ना। उनके खलीफा का सबूत नहीं है कुछ, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल किताब है, जो उनकी खुद की लिखी हुई किताब है, उस पर आइए ना आप। शेर खलीफा जो है उनके, सुनिए मेरी बात, शेर खलीफा जो किताब है उनके खलीफा की लिखी नहीं। अच्छा बताइए कि निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा कौन है? उनके खलीफा तो खैर बहुत से, नसीरुद्दीन महमूद शरार के लिए हजरत अखी सिराज है, तो उनका नाम होना चाहिए ना किताब पे। ये भी मोहम्मद बिन मुबारक हजरत के खलीफा, जिनकी किताब मशहूर है शेरुल औलिया। सुनिए, शेरुल औलिया पे तहकीक आप कर लीजिए, वो मुकम्मल किताब जो है उनके खलीफा की नहीं है, और उनके खलीफा में जिनका नाम शुमार होता है बड़े बड़े औलिया का, उनकी कोई किताबों के अंदर हजरत अमीर माविया के ऊपर लानतान है ही नहीं। नहीं, लानतान नहीं बता रहा हूँ मैं, उसमें शेर और औलिया के हवाले दो बता रहा हूँ। अब आप लानतान कह रहे हैं नहीं, लेकिन अगर आपने जब बीच में कॉल किया था कारी अहमद हसन को, कारी अहमद हसन वो कितनी गंदी गंदी हजरत अमीर माविया शान में गालियाँ बक रहा था, अब बताइए आप। आपका क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ ये वही है जो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। हम तो गौसे आजम को बहुत मानते हैं। आप मानते हैं तो उनकी नहीं मानते ना, तो उनकी नहीं मानते। आप फुतुल गैब उठाइए ना उनकी किताब। हाँ है फुतुल गैब, बिल्कुल। हाँ तो उसमें आपने पढ़ा, हाँ तो आपने उसमें पढ़ा नहीं है कि ये जितने भी मामलात है इस पे हमें लब को खामोश रखना है। क्यों? क्योंकि हर सहाबी सितारों की माइंद है, हुजूर ने फरमाया है। और हजरत अमीर माविया, सुनिए तो सही, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से लिखा है कि सारे सहाबी जो है सितारों की माइंड है। अगर हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलती होती तो इमाम हसन क्या उनके खानदान में निकाह करते? हजरत इमाम हसन की बीवी का नाम क्या बताइए जरा? फरवा। हाँ, किसकी बेटी थी वो? किसकी बेटी थी? हाँ बताइए।
आप बताइए। अल्लाह अकबर, यही तो आप लोगों की गलती है ना, आप लोग तहकीक नहीं करते। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर माविया के ख़ानदान में निकाह किया और उनकी बैत को कबूल किया और उनसे क्या कहते हैं उनका दरहम जो उन्होंने इनाम में दिया था उसको भी कबूल किया। आप सुनिए, ये आप एक मिनट रुकिए, आप रुकिए एक मिनट, वो बैत नहीं करता। एक मिनट रुकिए, एक बात और मैं बता दूं आपको, जो सुलह करता है वो बैत नहीं करता, ये भी वजाहत कर देता हूँ। हुजूर की वो हदीस आपने सुनी कि मेरा इमाम हसन तो मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा। हाँ, तो हजरत इमाम हसन ने किसकी सुलह कराई थी? ये तो इमाम अली मुकाम की शान थी कि उन्होंने जब देखा कि लोग बहुत मर जाएंगे तो कि दूसरा गिरोह तो मारने के लिए, जंग करने के लिए आया था, तो आपने लोगों को बचाने के लिए नहीं। अब सुने, अस्तगफिरुल्लाह तो इमाम हसन के बारे में, इमाम हुसैन ने 120 साहबियों को शहीद करवा दिया, इसका मतलब इमाम हुसैन भी ये काम कर सकते थे कि इन लोगों की जान पे आफत है, लाओ मैं हजरत यजीद जो है यजीद की बैत कर लूँ? नहीं, तो ये तो दोनों तरफ बात आ रही है ना। आप सुनिए, इमाम हसन ने जिससे निकाह किया वो हजरत अमीर माविया के खानदान की लड़की। अगर वो मुनाफिक होते, ना हक पर होते, तो इमाम हसन निकाह कैसे करते? नहीं, ये कोई दलील नहीं किसी की। अरे ये कैसे दलील नहीं है? अल्लाह अकबर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुनाफिकों से निकाह तो हुजूर ने मना फरमाया। एक मिनट काजी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो आदत नहीं है सब बहस मुबाहिसा करने की, आप मुझसे बातें कर रहे हैं। सुनिए ना मुफ्ती साहब, हुजूर ने मुनाफिकों के यहाँ निकाह करने के लिए मना फरमाया है कि नहीं? है, तो इसका मतलब हजरत अमीर माविया मुनाफिक थे तो हम इमाम हसन ने निकाह करके हदीस के खिलाफ काम कर दिया। कैसी बातें करते हैं मुफ्ती साहब? नहीं, हदीस के खिलाफ होनी चाहिए कोई बात आपसे। अच्छा ये बताइए, फरागत कहाँ से आपकी? करना नहीं चाहता, मेरी बहस करने की आदत नहीं है, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं कोई वो मुनाजरे वगैरह देखिए आपको ना, सुनिए, आपको पूरे मेरे से बातें नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं तो आपको बताऊं, बातें कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको सुनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहते हैं, ईसाइयों की हकीकत को सामने लाने के लिए उनको ईसाई का लिबास पहना के भेजा था। ये तो पता है ना आपको, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को? हाँ, क्या ईसाइयों का लिबास पहना के ईसाइयों के जलसे में भेजा था, ठीक है? और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खुशबू सूंघकर वो पादरी बोला कि इसमें एक सैयद है, वो कौन है? वो अल्लाह का वो है, नबी वली है, कौन है? वो खड़ा हो जाए। तो वो जब खड़े हुए तो उनसे सवाल जवाब हुए थे और सवाल में जवाब में उन्होंने फतेह हासिल की थी और वहाँ पे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्या कहते हैं, उनको कश्फ के जरिए हुक्म दिया, वो गए। अब अल्लाह वली को भेजा। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनाफिकों की पहचान करने के लिए, मुनाफिकों के बारे में पता करने के लिए कैसे पता लगता था कि ये सामने वाला मुनाफिक है या नहीं है? अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे वो उनमें जाते थे और कुरान कहता है ये जब तुम्हारे पास आते हैं तो ये तुम्हारे हक में बात करते हैं, लेकिन जब अपने लोगों के पास जाते हैं तो उनके साथ मिलकर तुम्हारे लिए साजिशें करते हैं। कुरान कहता है ये। तो मुनाफिकों की पहचान भी ऐसी होती थी जी, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपके साथ जो बात की, ये जो आप देखिए, आपको पूरी आवाम सुनती है, आप बयान करते हैं, तकरीर करते हैं, लेकिन जब आपको खुद तहकीक नहीं है, आपको खुद नहीं मालूम है कि आज की तारीख में कुरान किसका पढ़ना चाहिए, आप लोग खुद कुरान लिखने के, तर्जुमा करने के सलाहियत नहीं रखते हैं और आप लान तान करते हैं अहमद रजा खान आजकल देखिए अली कादरी साहब, जो आजकल माहौल चल रहा, मैंने उसके मुताबिक कहा, मेरी अपनी कोई राय नहीं है, मैं तो आला हजरत का तर्जुमे का कुरान भी है मेरे पास, और दूसरों का भी है। अब आप जो बताए हम उसका पढ़ें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं कोई वो नहीं करता हूँ। ताहिरुल कादरी का मैंने आपको बता दिया, उसने हूबहू कॉपी मारी है, वो इतना बड़ा आलिम नहीं है जो कुरान का तर्जुमा खुद कर दे। मैं कह रहा हूँ तर्जुमा तो बहुत बेहतरीन किया है उन्होंने। बेहतरीन तो आला हजरत का किया है ना, कॉपी मारी है सेम। ठीक है, हम तो आला हजरत का ही पढ़ते हैं तर्जुमा, हम तो आला हजरत का ही पढ़ते हैं। तो जनाबे मन, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आज की तारीख में ये 14वीं सदी में जो आला हजरत का तर्जुमा है, इससे बड़ा तर्जुमा करने वाला अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ। आपने ये फिरका कैसे बना लिया? ये मौलाई फिरका कैसे बना लिया? गलती आपके कहने से नहीं होगा ना। आपके आसमुल रिजाल को जानते हैं, कुरान के 8 उलूम होते हैं, आपको मालूम है 8 उलूम कौन से हैं? मैं आपसे कुरान का तर्जुमा करने के लिए, मोहतरम, कुरान का तर्जुमा करने के लिए 8 उलूमों पे महारत हासिल होनी चाहिए। अब वो 8 उलूम कौन से मालूम है आपको? जी नहीं मालूम है ना, तो आपको कैसे पता लगा वो सही है या गलत है, जब तक आप उसकी तफसीर नहीं पढ़ेंगे कुरान की? नहीं, ये तो मालूम हो जाता है। ऐसे कैसे मालूम हो जाता है? अच्छा, मेरे को बताइए कि सूरह मोहम्मद आयत नंबर 20 में
20 या गालिबन 21 है। अरे एक बात बताऊं आपको, अली कादरी साहब, आप मुझसे क्यों ये सब बात कर रहे हैं? मैं तो किसी से ये बात करता ही नहीं। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपने जो अपने बेटे को छोड़ा है ना, आधा इल्म दे के छोड़ा है। मैं तो उससे बात करने के लिए फोन किया था, वो फोन ही नहीं उठाए। तो उससे बात कर लिया कीजिए, आप मुझसे क्यों? मैं तो किसी से ऐसी बात नहीं करता हूँ। आपसे कितने प्यार मोहब्बत से बात नहीं है। अच्छा मैं जो प्रोग्राम करता हूँ उसमें बहुत समझ बूझ करके मैं गुफ्तगू करता हूँ। हाँ बिल्कुल 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 की बातें नहीं रहती हैं। बिल्कुल। देखिए मोहतरम, आपके बेटे ने एक वीडियो अपलोड किया था, वो उससे बात किया था मुल्ला अतर देवबंदी से। उसमें उसने आला हजरत की 2-3 किताबें पेश की थी। तो हमने उनको फ़ोन किया था, हमने उनको बड़े प्यार से बोला था कि हजरत आपने जो ये आला हजरत के ताल्लुक से इसमें किताब में जो बोला है, हमें इस पे आपसे बात करनी है, आप आए और इस पे बात करें। तो वो बात ही करने को राजी नहीं करा, नहीं मैं इस पे बात नहीं करूंगा। अरे भाई, तुम किसी के खिलाफ उंगली उठा रहे हो, आला हजरत के ताल्लुक से वीडियो अपलोड कर रहे हो। देवबंदी साहब, मैं कल को अहले हदीस से फ़ोन करके और आपके मौलाई फिरके के ताल्लुक से बातचीत करके वीडियो डाल दूँ तो आप मुझे फ़ोन करोगे ना, पूछोगे ना भाई मौलाई के ताल्लुक से ये किताबें तुमने पेश की है, कहाँ से पेश की? बताओ, मैंने कोई मौलाई फिरका नहीं बनाया है। मेरा कोई मौलाई फिरका नहीं, मेरा एक फिरका है अहले सुन्नत वल जमात। ये तो हजरत सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात तो अपने आप को सब बोलते हैं ना, अहले सुन्नत वल जमात तो कादियानी भी बोलने लगे हैं। और मार्फते अहले बैते अथार, तो मार्फते अहले बैते अथार में सुनिए, नासबियत के खिलाफ। अब सुनिए, मार्फते अहले अतहार में तो आप खुद फंस गए। आप 40 दिन इमाम हुसैन का मातम कर रहे हैं और 9 दिन हज़रत अली का कर रहे हैं। फंसाइए क्या भी करिए तो आपकी मर्जी है। चलिए, लेकिन मैं आपको सुनिए, और क्या है। अब देखिए, आपसे कितने बेहतरीन तरीके से बात हुई है। अब मैं आपको बताऊं, मैं वही जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ जिसको आप लोगों ने गालियाँ पढ़वाई थी कारी अहमद हसन से। जमशेद भाई कारी अहमद हसन से आपके बेटों ने आपने दोनों ने गालियाँ पढ़वाई है। बाबा जमशेद, मेरी बात सुनो। आप एकदम, आपकी बात ऐसी, पहले किसी से दुआ सलाम करते मोहब्बत से, फिर आप बोल रहे हैं गंदी करते क्या? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, खेती बाड़ी का काम है मेरा। नहीं, देखिए ये तो देखिए हकीकत है, उसको छोड़ दीजिए। आप एक तावीज भी नहीं देता। अब उस ताल्लुक से बात नहीं करनी है, वो तो देखिए जितना छुपाओगे नहीं छुपेगा, वो तो छोड़ दीजिए। अब ये बताइए, अजमेर में ये जितने बैठे हैं जिनकी कलमें बड़ी बड़ी है, छुपाना नहीं, तावीज गंदे करता नहीं, मेरे तमाम पब्लिक जानती है, हर कौम मेरी इज्जत करती है। अरे मेरी बात सुनिए, ये जितने लोग जो बैठे हैं अजमेर में, जिसकी कलमें बड़ी हैं, दाढ़ी का पता नहीं है, उसकी किरत ठीक नहीं है, उसको अलहम्दो शरीफ नहीं आता, फातिहा का तरीका नहीं मालूम, ठीक है, और वो बड़ा लुब्बा जुब्बा पहन करके और या खाजा और हम आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अबे पहले आला हजरत के बारे में पढ़ तो सही, आला हजरत चीज़ क्या थे वो देख तो सही, उनकी इल्म क्या थी, इल्मी सलाहियत क्या थी वो देख तो सही, पढ़ तो सही, उनकी किताबों में घुस तो सही। अबे जाहिल, तुझे अल्ली से देगा नहीं मालूम है, तू आला हजरत पे लान तान करता है। नहीं, अब वो अजमेर वाले जाने, वो हमारे जमशेद बाबा, वो अजमेर वाले जाने, हमें क्या, हम किसी को तावीज़ नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। मेरा खेती बाड़ी का काम है। चलें ठीक है, वो वजाहत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे आपको। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और कहीं से तकरीर का, और यहाँ से तो सारे इलाके में लोग जानते नहीं थे, हमने बताया अहमद रजा को ने। देखिए, अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का नाम लेकर के मैंने सुन्नियत का वो काम किया है क्या? कहीं दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती ऐसा। लेकिन आपने लोगों को, हजरत आपने लोगों को भटका दिया ना, हमने बताया अहमद रजा कौन है। तो लेकिन आपने लोगों को भटका दिया ना, आपने लोगों को भटकाया। देखिए, आपने लोगों को भटकाया क्या कि हजरत अली करमुल्लाह करीम का मर्तबा आपने हुजूर के बाद तमाम अंबिया से अफजल कर दिया। हाँ, नहीं, ये तो हम फिर कहेंगे आपसे, हम बदलेंगे नहीं बात। अब मैं इस पे आपको दलील देना शुरू करूंगा, उन पर दलाइल मुझे बताएं कि वो नहीं है। हाँ, मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा, ये मेरी आपकी पर्सनल बात है। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, ये बताएं, सबसे पहले बच्चे में कलमा किसने पढ़ा था? हैं? सबसे पहले जवान में और बच्चे में कलमा किसने पढ़ा था? जवान और बच्चे का सवाल नहीं, मौलाए कायनात तो ईमान वाले हैं, उन्होंने तो ईमान का ऐलान किया। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। हजरत अली करमुल्लाह करीम ने 11 साल की उम्र में कलमा पढ़ा था। हाँ, ठीक है, तो अगर अंबिया से अफजल होते तो तमाम अंबिया ने तो कलमा नहीं पढ़ा दुनिया में। अंबिया से अफजल कौन बता रहा है? आप ही तो बताते हैं कि हजरत अली जो है सहाबा में बात कर रहा हूं, आपके कहने से नहीं होता ना, आपके बेटे का कहना है भाई, आपके बेटे का कहना है कि हुजूर के बाद तमाम अंबिया से अफजलियत हजरत अली की है। एक बात करूं जमशेद भाई, मैं जो है, मैं एक मुर्शद आदमी हूँ बाबा, अल्लाह वाला आदमी हूँ। आप मेरे से ऐसी बात ना करा करें, उनसे आप मुफ्ती साहब से बात कर लिया करें। तो मुफ्ती साहब को आप समझाए ना, आपका मुफ्ती मलक तो नहीं है।
अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं मुझे कि नहीं, अहले बैत में किसको किसको शामिल करते हैं आप? मैं अपने आलम में अपने हाल में रहता हूँ। मोहतरम, अहले बैत में किसको किसको शामिल करते हैं आप? अहले बैत में किसको शामिल करते हैं? किसको किसको शामिल करते हैं? किसको शामिल करना, ये कोई बताने वाली बात है? अरे यार, बिल्कुल अहले बैत में किसको किसको शामिल, कौन कौन अहले बैत में आते हैं, जरा मुझे बताएंगे, वजाहत करेंगे? यही जो है 12 इमाम अहले बैत 18 और उनकी औलाद। अच्छा, तो हजरत खदीजा कहाँ जाएंगी? हाँ, अहले बैत में। अच्छा, अहले बैत में है, तो उनकी 4 बेटियां कहाँ जाएंगी? अहले बैत हैं, उनकी 4 बेटियां कहाँ जाएंगी? अब 4 बेटियों के बारे में जमशेद भाई देखो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, वो बहुत दलाइल में चली जाएगी। अरे उसमें अच्छा, चले उसको छोड़ दें आप। अच्छा, ये बताइए कि अम्मी आयशा हैं, वो 4 बेटियों का मसला आप खुद जानते हैं। अच्छा, नहीं, वो तो देखो हम बाहर लगा देंगे दलाइलों के, उसको छोड़े। अच्छा, ये बताएं, अम्मी आयशा लगा देंगे, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहले बैत में शामिल है कि नहीं? मैं जितनी भी बातें आपकी हुई ना, किसी दलाइल में गया नहीं हूँ, मैं भी हर मौजू पर दलाइल के अंबार लगा दूं, मगर मुझे ये बातें करने की आदत नहीं है। आज पहली बार है जो आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मुफ्ती साहब भी करते हो। अच्छा, मुफ्ती साहब ये बता दें, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है, ये अहले बैत में शामिल है कि नहीं? एक अहले बैत नसब है, अहले बैत सबब है। तो ये कहाँ से निकाला आपने? निकाला कहीं से निकाला? अरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने निकाह किए वो सब अहले बैत में आनी चाहिए। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुनिए, मेरे पास भी हर मौजू पर बहुत दलाइल हैं, बहुत दलाइल हैं, कुरान के बारे में भी, आप लोगों ने देखिए के बारे में भी, और तमाम उलूम के बारे में भी, लेकिन मैं उसमें दलाल में नहीं जा रहा, क्योंकि वो उन पर बात करने की बनी रहती है। मुफ्ती साहब हो तो बात करें हम आप। अच्छा, चले, मैं सामने भी इंशाल्लाह आता हूँ। मुफ्ती साहब, आप लोगों ने बोले कि मैंने आला हजरत की तालीम को बढ़ाया। कहाँ बढ़ाया आपने आला हजरत की तालीम को? नहीं, अपनी तालीम को आगे किया है। हमने यहाँ पर सारी पब्लिक जानती है, एक बच्चा गवाही देगा यहाँ। ये तो आप लोग झूठ बोल के बरेलियों में घुसते हैं। ना, ये तो आला हजरत का नाम लेके आप उनमें घुसते हैं, क्योंकि आप लोगों का खाना हजम डालने के लिए। ना, यही तो ताहिरुल कादरी ने किया, और यही आप लोगों को तरीका बताया उसने कि अगर बरेलवियों में घुसना है, अपने फरीके को बढ़ाना है, तो आला हजरत का नाम लेके घुसना पड़ेगा। जैसे ताहिरुल कादरी 10 साल पहले आला हजरत खूब चिल्लाता था, लेकिन अब उसने छोड़ दिया चिल्लाना। बात गड़बड़ हो जाती है। आप अपनी बोलते हैं, हम लोगों की सुनते नहीं आप। हम कभी भी बरेलवियों में नहीं घुसे, बल्कि हमने लोगों को बरेलवियत बताई, आला हजरत का नाम बताया हमने हजारों जगह। आला हजरत का लिखा हुआ सलाम पढ़ते हैं? सुने, आला हजरत का सलाम पढ़ते हैं लिखा हुआ आप? या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे पढ़ते हैं आप? या नहीं, या नबी सलाम अलैका क्यों नहीं पढ़ते? अरे ये कोई बात है क्या जमशेद भाई? आला हजरत से भूल रखते हो? नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसमें क्या कबाहत है? जरा कबाहत पेश करें। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, क्या कहने बहुत अच्छा है। चलिए, बुरा कब कह रहे हैं? उसको तो कोई बुरा नहीं, छोड़िए, सलाम बुरा कहने का सवाल ही नहीं, कोई भी सलाम है। अरे इस पर तो अजमेर के मुजावर डंडा निकालने हैं भाई, इसकी सलाम तो अजमेर के मुजावरों की सुलगी हुई है। हमारी कोई उनसे रिश्तेदारी है क्या जमशेद भाई? कारी अहमद हसन की सुलगी हुई है सलाम से। कारी अहमद हसन रोज अपने वीडियो पे अपलोड करता है अहमद रजा के ताल्लुक से, और आप लोग उसको लाइन पर लेकर के गालियां पढ़वाते हैं। नहीं, वो करने नहीं, मैंने नहीं दिया, मुझे तो फोन लगाना। आपके बेटे ने किया। अब वो बेटा करने दो भाई, अब बेटा अपना खुद मुख्तार है। देखो, मैं इतनी देर में आपसे कोई एक भी गलत बात किया? नहीं, मैंने भी कोई गलत बात नहीं किया। आप लोगों ने जो इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने लान तान किया, खुदारा हमने कोई लान तान नहीं, शुरुआत आपके बेटे ने किया था। चले बैठ के देखो, उस दिन मेहमान आए हुए थे, वो फोन लेके चले गए, मैं तो घर में बैठा रहा, मुझे मालूम ही नहीं बात क्या हुआ। चले, कोई नहीं, वजाहत हो गई, आवाम इसको सुन लेगी, फैसला कर लेगी। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो, अहमद रजा जी हजरत। हाँ, देखिए सामीन इकराम, ये हैं सैयद शाहनवाज साबरी के वालिद साहब, जो मुफ्ती सलाम साहब हैं। ये मुफ्ती हैं और वो भी मुफ्ती है। अब आप लोगों ने सुन लिया कि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से अच्छा कुरान का तर्जुमा किसी ने नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि आज की तारीख में इन रावजियों को कुरान पढ़ना हो तो अहमद रजा का पढ़ेंगे, लेकिन लान तान करे बिना बाज नहीं आएंगे। अच्छा, अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का तर्जुमा कुरान पढ़ेंगे, सलाम में एतराज़ है। आगे चलें,
دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک اصول بنایا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ رافضی بریلویوں میں گھستے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام لے کے، اور اس کے بعد جب یہ پورے طریقے سے گھس جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ لوگ ان کو رافضی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ کو بنا بھی دیتے ہیں، لیکن جو علم والا ہوتا ہے وہ ان کے چنگل میں نہیں پھنستا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے جو یہ عبارت پیش کرتے ہیں اس کی بھی میں نے مکمل اس میں وضاحت کر دی۔ امام حسن نے ان کے خاندان میں نکاح کیا، وہ بھی وضاحت کر دی۔ اب یہ ساری تفصیل کس سے نکاح کیا اور کس سے جنگ جمل میں کون سا ایسا لشکر تھا بیچ کا جس نے وہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کو بھی قتل کیا، شہید کیا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، یہ کون سا لشکر تھا، اگر اس کی وضاحت آپ کو چاہیے تو آپ میرے پرسنل میں کریں میسج، کیونکہ وائس بہت لمبی ہو جائے گی، پرسنل میں میسج کریں، میں صراحتاً اس کی آپ کی وضاحت اس کو کر دوں گا۔ اب یہاں سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ جو رافضی ہیں جو انہوں نے اپنا فرقہ بنایا ہے، یہ صرف اور صرف اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے محترم سامعین اکرام کہ جو درگاہوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اور جو یہ اصول انہوں نے بنایا ہے درگاہوں پر، یہ چادر گاگر، عورتوں کا ڈھول تاشا، یہ جو طرح طرح کے رسم و رواج انہوں نے نکالے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے وہ بہت کڑا ہے اس کے اوپر۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ بہت کڑا ہے ان کے اوپر۔ اگر اس فتویٰ پہ یہ چلیں گے تو ان کو عورتوں کو مزار میں گھسنا بند کرانا پڑے گا، ان کو ایک چادر سے زیادہ دوسری چادر چڑھانا بند کرنا پڑے گا، ان کو ڈھول تاشے سے قوالی بند کرنی پڑے گی، پتہ یہ لگے گا ان کی روزی روزگار ختم ہو جائے گا، جو ان سے چل رہا ہے چھینا جھپٹی سے لوگوں کی جیبیں نکالنا، کھسوٹنا، یہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ چاہتے نہیں ہے، اس کو اپنے روزی روٹی کو بچانے کے لیے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں کہ مال کمانے کے لیے یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو سامعین اکرام اپنے ایمان کو ان سے بچائیں، اور یہ جو میم رافضی ہے نا جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے آپ کے بیچ میں گھستے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو خدا را پہلے ان کی پوری تحقیق کر لیں کہ یہ کہاں سے فارغ ہے، یہ کہاں سے پڑھے ہیں، کہاں سے ڈگری لی ہے، کون سے ادارے سے، کون سے مدرسے سے، اس کے بعد کسی کو دعوت دیں۔ یوٹیوب پر دیکھ کر کے اور سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کے ایسی کسی عالم کو نہ بلائیں، پوری تحقیق کریں کہ واقعی وہ مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے، واقعی وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ادارے سے سند یافتہ ہے، وہ فارغ ہے، تبھی اس کو آپ انوائٹ کریں۔ باقی آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا ہے، میرا کام تھا حقیقت سامنے لانا کہ یہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کا مرتبہ گھٹانے والا جو ہے وہ منافق ہے، کافر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 9 دن کے بعد یہ عید بھی منا رہے ہیں، 9 دن کے بعد یہ شادی کی بھی اجازت دے رہے ہیں، 9 دن کے بعد یہ خوشی بھی منا رہے ہیں، اور امام حسین کی شہادت پہ 40 دن تک یہ کچھ نہیں کرتے، نہ حکم دیتے ہیں کرنے کا نہ کروانے کا۔ اب مرتبہ کس نے گھٹایا ہے؟ ان رافضیوں نے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تمام انبیاء سے حضور کے بعد فوقیت کس نے دی ہے؟ انہوں نے۔ نہ ہی عزو جواز میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی خود ان کے طاہر الپادری جس کو کہتے ہیں نا، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام انبیاء سے حضور کے بعد فوقیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رافضیوں یہ ان کا اپنا گڑا ہوا عمل ہے، کیونکہ یہ ان میں کوئی پڑھا لکھا تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، بس اپنی طرف سے جو روایتیں ملتی ہیں وہ۔ اب جن بزرگوں کا نام میں نے لیا، اگر آپ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں گے، فتح الغیب پڑھیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اور شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اور کئی ائمہ ایسے ہیں، کئی فقہا ایسے ہیں، کئی بزرگ ایسے ہیں جن کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بھی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن یا حضرت امیر معاویہ کو کسی نے صحابی رسول ماننے سے منع نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے اوپر لعن طعن کرنے کا حکم دیا ہے، نہ ہی کی ہے۔ تو خدا را ان سے اپنے ایمان کو بچائیں، بزرگوں کے عقائد پہ رہیں، عزم جواز میں اپنی پکڑ بنائیں، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے نوازیں، علم سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان رافضیوں سے، شیعوں سے، قادیانیوں سے، دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، چکرالویوں سے، ان مولائیوں سے حفاظت کرے، اپنے حبیب کے سچے طفیل۔ آمین ثم آمین۔ السلام